to Jumpstart on Big Radio Online. इस शो पर मैं बात करती हूँ बिजनेस लीडर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स एंड प्रोफेशंस एंड वी डिस्कस वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर यंगस्टर्स हु आर राइट एट द बिगिनिंग ऑफ their career or who want to give a jump start to their career. Now, आज का जो कॉन्वर्सेशन है ये बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही डिफरेंट होने वाला है. Have you heard of this term before? Millennial marriage coach. मैंने तो ये कभी पहले नहीं सुना था एंड आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि इसका मतलब क्या होता है. हु इज अ मिलेनियल मैरिज कोच? सो लेट्स फाइंड आउट मोर एंड लेट मी वेलकम ऑन द शो माय स्पेशल गेस्ट फॉर टुडे, लीना परांजपे, अ मिलेनियल मैरिज कोच. हाय मैम, वेलकम टू द शो. हाय परी, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी. कैसे हो आप? बस मजे में, बढ़िया. ये बड़ा अच्छा लगता है मैम, मेरे को सुन के 2020 में कोई ऐसा पॉजिटिव सी चीज बोलता है ना बड़े मजे में, तो बहुत अच्छा लगता है. इट्स अबाउट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यू नो. या. अच्छा, आपको कहते हैं मिलेनियल मैरिज कोच. यस. मुझे इस टर्म का तो सबसे पहले तो मतलब समझाओ मैम. हु इज द मिलेनियल मैरिज कोच? सबसे पहली बात है कि एज अ कोच, यू नो, यू हैव टू ब्रिंग आउट द बेस्ट पार्ट इन अ पर्सन एंड you have to help them. It's a hand holding, definitely, to get more and more insight from the client point of view, to give them the hand holding, to show them the pathway to resolve their own issue on their own. As a counselor, you give the guidance and the advices, which I don't give, but I help the millennials to explore more possibilities. तो ये स्टार्ट कैसे हुआ मैम? मतलब हाउ डिड यू स्टार्ट वर्किंग? व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग? कैसे जर्नी कैसे शुरू हुई? I was in a training industry since 1994. When I was in a training industry, I got the insight that I get connected with the people very soon. And people used to, reveal their own problems regarding their personal relationship with me in our 1 hour interview, which we used to have in that training module. And I used to just provide them that time, definitely, the guidance or some tips, and that used to help them to resolve their issue. Maybe it was for अगर 2 साल का भी issue है तो भी वो resolve होता था. अरे मैम, ये बात हुई नहीं है, गए 6 महीने से हम लोग एक दूसरे से अच्छी तरह बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी recently we have just started, 3-4 दिन ही हुए हैं. So those tips used to, were workable, I mean. So in 2016, when finally I gave a call that simultaneously I wanted to do something at the next level for marriage, for restoring the marriage. तो counselors तो बहुत सारे हैं, लेकिन with due respect to them, marriage counseling and couple counseling is failing in India. So that thought came in my mind, why can't I take the accreditation as a coach and I start, something next level where the execution part will be there. Only guidance is not going to work because that is not going to give you the result. Saving marriage is very personal to me. I have gone through the ups and downs of my own marital journey. And when I have seen those, जब मैंने खुद के शादी में ये सारे tools, techniques use करके आज मैं यहाँ तक आई हूँ, तो मुझे लगा yes, अगर मैं मेरी problems resolve कर सकी हूँ, तो फिर क्यों नहीं ये लोगों के लिए भी काम आ सके. तो हमेशा से मैम यही करना था, लाइक जब आपने अपनी पढ़ाई खत्म की होगी, व्हाट वर योर ड्रीम्स ग्रोइंग अप? एस्पिरेशंस क्या थे? क्या करना था लाइफ में? देखो, तब ये उम्र नहीं होती है बहुत ज्यादा कि हमें क्या करना है, सबको इंसाइट्स नहीं आते. वैसे मुझे तभी इतना इंसाइट नहीं था कि मुझे क्या करना है, बट आई एम अ पीपल्स पर्सन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से कनेक्ट होना, उनके साथ रहना, बीइंग सोशल विद देम एंड सर्विंग देम. When that was my passion, I would say, now marriage coaching has become a purpose of my life, my dear. So आपने कहा कि मैम आपने ये 2016 में किया स्टार्ट. 2016 में officially I started. Since 1994, of course, I was doing it along with my language training programs. But उसमें वो certification नहीं था, वो authenticity नहीं थी, वो graduation नहीं था. When I became the International Coach Federation, under that wing, when I became a certified coach, then of course I thought of exploring this into the subject marriage. तो मैम अब मेरे को ये बात बताओ, कोचिंग एंड काउंसलिंग, ये 2 वर्ड्स हैं जो आप अभी काफी यूज कर रहे थे, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है?
काउंसलिंग में होता है ये कि गाइडेंस दिया जाता है, एडवाइसेस दिए जाते हैं, लेकिन इन गाइडेंस और एडवाइस को आगे जाकर अपनी डेली रूटीन में, अपनी शादी में इम्प्लीमेंट करना, इसको एग्जीक्यूट करना, ये जो कुछ करेज की बात है, या उसके लिए जो भी चैलेंजेस आते हैं, या उसके लिए जो भी एक स्टेप लेने की जरूरत है, वहाँ जो हैंड होल्डिंग दिया जाता है वो एज अ कोच दिया जाता है, नॉट एज अ काउंसलर। काउंसलर की कुछ मर्यादे हैं, कुछ लिमिटेशंस है, सो दे हैव द लिमिटेशन टिल गिविंग द एडवाइस एंड गाइडेंस, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना एंड हेल्पिंग दैट मिलेनियल बाय हैंड होल्डिंग देम टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर न्यू पॉसिबिलिटीज, इट्स मोर एक्शन सेंट्रिक. Ma'am, hypothetically asking, if you had to restart your career now, what would you have chosen? If not this, then what? I would say I would stick to only this itself. I would have chosen the profession which would help me, to connect with people. Again, I would say that. Because understanding people is a challenge nowadays. मैम, एक तो मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर when you talk about people skills, प्लीज मुझे बताओ कि पीपल स्किल्स सीखते कैसे हैं और कल्टीवेट कैसे करते हैं इन स्किल्स को? इज दिस समथिंग जो इनबॉर्न होता है और दिस कैन बी एक्वायर्ड? टू सम एक्सटेंट इट इज इनबॉर्न, लेकिन ये एक्वायर किया जा सकता है बाय कनेक्टिंग विथ योर ओन सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग और हैविंग दैट सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अ पर्सन. आजकल के जनरेशन में ये सेंसिटिविटी थोड़ी बहुत लैकिंग दिखती है इन दिस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्ल्ड, जहाँ पर ये इनके पास बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है मिलेनियल्स के पास, लेकिन ये सेंसिटिविटी का इशू बहुत कम दिखाई देता है एंड सेटिंग द प्रायोरिटीज इज वेरी वेरी मच लैकिंग नाउअडेज. अच्छा मैम, मुझे ना आपसे एक बहुत ही पर्सनल सा क्वेश्चन पूछना था. आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज्ड मैरिज? एक्चुअली इसका आंसर मैं आपसे लेती हूँ आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, सो यू स्टे ट्यून्ड. मेरा नाम है परी एंड दिस इज जंप स्टार्ट ऑन बिग रेडियो ऑनलाइन. जंप स्टार्ट ओनली ऑन बिग रेडियो ऑनलाइन. शहर का हाल पूछने के लिए घर से निकलने की जरूरत नहीं. हर घंटे शहर का हाल लोकल कनेक्ट से आपको पता चल जाएगा. शहर के लोग, एक्सपर्ट्स और अथॉरिटी से बातों का सिलसिला बदलती तस्वीर दिखाएगा. लोकल कनेक्ट ऑन बिग रेडियो ऑनलाइन. बिग रेडियो ऑनलाइन. आप सुन रहे हैं जंप स्टार्ट ओनली ऑन बिग रेडियो ऑनलाइन. This is Pari and you are listening to Jumpstart on Big Radio Online. इस शो पर मैं बात करती हूँ बिजनेस लीडर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से and we discuss various career opportunities for youngsters who are right at the beginning of their career or who want to give a jump start to their career. So आज मैं बात कर रही हूँ about a very different topic and एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में मैंने इससे पहले आज तक कभी बात नहीं की है. Very exciting, very interesting and very different. Let me welcome back on the show my special guest for the day, Leena Paranjpe, who is a millennial marriage coach. Leena ma'am, welcome back on the show. Before I get to knowing more about, how to be a coach and what it takes to be a coach, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज्ड मैरिज? Of course love marriage थी. So ये कब हुआ मैम? ये भी 90s वाला प्यार था? Yes, definitely, of course, yes. ये 90s वाला ही प्यार था. And then we finally got married in 1992. और बहुत अच्छा जर्नी रहा है मतलब शादी का. उसमें बहुत, जैसे मैंने कहा, ups and downs तो definitely आए. लेकिन we took almost 7 long years to know each other thoroughly, deeply, and understand and accept each other. What it takes to be a marriage coach or any coach for that matter? You should have a passion, you should have the courage and the eagerness, to help the people. If you have these 3 qualities, definitely
you can become a coach and you can explore more, possibilities in any field. Maybe it is a business coach, sales coach, mind coach, X, Y, Z. Being a coach, external ears and eyes, of that person. जो वो लोग नहीं देख सकते रिश्ते में या बिजनेस में, जो भी कोचिंग हो वो आप देख सकते हो. And that is how you are hand-holding a person and taking him or her towards that. कि वहाँ पे उसे वो नजरिया. So you will work as a catalyst. And experience कितना बड़ा रोल प्ले करता है इसमें? How important is experience, to be a coach or a marriage coach? It's a great role. It plays a great role because experience is the Mahaguru. पढ़ लिख के technically if you take the knowledge, yes, it is there. But the experience of course gives you that insight, and it helps you to understand a person quickly. It's not about judging a person, it's about understanding a person. Now, talking about the financial viability of this career choice or profession, जब भी हम कुछ प्रोफेशन या कोई भी करियर चॉइस लेते हैं, जब भी हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, प्रोफेशनल जर्नी, वन ऑफ द क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में आता है वो ये जरूर होता है कि यार इसमें स्कोप क्या होगा, इसमें फाइनेंशियल स्कोप कितना है, विल आई बी एबल टू मेक मनी इफ आई डू दिस. सो व्हाट यू हैव टू से ऑन द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ दिस प्रोफेशन? Frankly speaking, last 4 years जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, डिफिकल्ट है इस लेवल पर आना, लेकिन बिकॉज इट हैज बिकम अ पर्पस ऑफ माई लाइफ, मैं सिर्फ फोकस्ड हूँ इस पर. पहले बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था. यस, आई हैव इन्वेस्टेड n नंबर ऑफ आवर्स इन दिस, बट यस, ये प्रोफेशन पैसा देता है. बस ये इंडियन माइंडसेट में एक्सेप्टेंस के लिए ये लोग टाइम ले रहे हैं बहुत ज्यादा, बिकॉज काउंसलिंग इज प्रेवलेंट. I'm not saying that counseling is bad, but what the experience and the numbers statistics says, couple counseling is failing in India. One partner wants to resist and the other wants to restore. So the total result is always zero, and that is why the divorces are more. तो अगर आपको एज अ कोच बनना है तो पहले तो इंडियन माइंडसेट में हम एक्सेप्ट होने चाहिए कि यस, मेरी शादी में दिक्कत है और मुझे आई वांट टू सीक द हेल्प. तो ही वो लोग मैरिज कोच ये टर्म डालकर गूगल में सर्च करेंगे. सिर्फ ये बात है ना यहाँ पर कि शादी करना बहुत आसान है, जो लोग आराम से करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी बहुत करते हैं, और शादी तोड़ना ये भी आजकल आसान हो गया है, जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं. शादी तोड़ने में क्या इन्वेस्टमेंट होती है मैम? डिवोर्स लॉयर नहीं है. Right. You have to invest to break a relationship. You have to invest, and आपके emotions आप invest करते हैं. That is the biggest investment. Tangible, intangible, both the investments are there in creating a relationship and breaking a relationship. So why can't, my question here is, why can't we invest in nurturing a relationship? Come on. मतलब शादी करने के लिए हम पैसे खर्च करते हैं, शादी तोड़ने के लिए खर्च करते हैं, जहां हमें छुटकारा चाहिए, क्यों शादी संभालने के लिए हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते? ये आपने बुलसआई हिट कर दिया मैम एकदम. मूविंग ऑन मैम, हर प्रोफेशन को लेकर ना कुछ मिथ्स होते हैं. So when it comes to your profession, when it comes to being a coach, when it comes to being a marriage coach, ऐसे कौन से कुछ मिथ्स है जो आप बस्ट करना चाहोगे? ऐसे लोगों को लगता है कि अरे ये भी कोई बिजनेस है, मतलब कैसे पैसे कमाता है लोग. एक और ये परसेप्शन होता है क्या मैम कि जैसे आई वाज टॉकिंग टू अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो उन्होंने बोला कि पहले ये परसेप्शन होता है कि मैं बिकॉज एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो आई माई सेल्फ हैव टू बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम, बट दैट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल ना मैम. मतलब यू कैन हैव अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, बट यू कैन बी ब्रिंगिंग विद मोटिवेशन ऑल द टाइम. सो ऐसा भी परसेप्शन होता है आपके लिए कि आप बिकॉज एक मैरिज कोच हो, दैट मीन्स यार इसकी मैरिज तो एकदम परफेक्ट होगी, मतलब माय गॉड. ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि जैसे लीना परांस में मैरिज कोच है, मतलब उसकी मैरिज तो एकदम परफेक्ट है, उसको कुछ भी उनको मतलब तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता होगा. लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, वी आल्सो फाइट, but we enjoy those fights. Rather than fights, I should say arguments, but we enjoy those arguments. It's about progressive arguments. It's not about where you are actually sucking each other's energy. It's about you are helping each other to go to the next level of your marital journey. To
Two last questions, ma'am, for people who want to take this up as their profession. But जब भी आप कुछ शुरुआत करने की सोचते हो ना, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता दिमाग में, how do I start? So उस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? पहली बात ये है कि मैरिज कोच बनना कुछ आसान नहीं है। आपके मैरिजेस में मतलब आपकी शादी अगर हुई हो तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हो तो पहले तो आपको एज अ कोच सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा एंड देन यू विल हैव टू टेक द स्पेशलाइजेशन इन दिस सब्जेक्ट। और ऐसा है मैम कि जो लोग मैरिड है सिर्फ वही इस प्रोफेशन में आ सकते हैं? कैन एन अनमैरिड पर्सन आल्सो बी अ मैरिज कोच? At this level, I would say if the unmarried people want to become a coach, that will become a business. And the businesses with the emotions can do marketing, but they cannot sustain. The coach or the person who has gone through that will be able to give a justice to the people, Thank you so much for your time. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते जाते मैम एक लास्ट चीज आप कुछ कहना चाहोगे for all the youngsters and millennials who must be listening to us right now? Yes, definitely. So I would like to, add some 3 specific questions you need to ask yourself before, tying the knot. The first question can come as, am I a good decision maker for my life? The second question will come, what do I achieve through this marriage? What is the purpose of my marriage? Why am I getting married? And the third very important question, am I courageous enough to accept the differences of my partner? आपसे ऑल्दो मेरे को बात करके बहुत अच्छा लगा मैम, बट मैं ये कॉन्वर्सेशन अपने मम्मी पापा को नहीं सुनाऊंगी वरना वो कल ही मुझे शादी करो बेटा। थैंक यू मैम, लवली हैविंग यू ऑन द शो। नाउ आई नो कि लोग आपसे इतना इजीली कनेक्ट क्यों हो जाते हैं, बिकॉज यू हैव दिस रियली गर्ल नेक्स्ट डोर गो टू पर्सन वाली वाइब। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर योर टाइम। Thanks, Pari. I'm also, grateful for, inviting me for the show. Thanks a lot, dear. Jumpstart. Only on Big